Good afternoon, student. This is your Mitali ma'am. As today was your class, but I was unable to take your class on Zoom app due to network issues. I was unable to connect with you all. That's why I have prepared a video on today's topic, that is numbers and numeration, chapter 1. And let's start the topic. In your previous class, you have studied up to 7-digit numbers. But now in this class you will learn up to 9 place digits, that is up to 10 lakh. In this chapter, numbers and numeration, you will study about Indian place value chart, international place value chart, ascending order, descending order, expanded form, short form, place value, face value. You will learn all these things. So let's start the topic. Our first topic is Indian place value chart. In Indian place value chart, the 9 places, these are the 9 places: ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. These 9 places are grouped into 4 periods. These are the periods, as you can see: crore, ones, 1000, lakh and crore. And under each period there are three places. In ones period there are 3 places: ones, tens, 100. In 1000 period there are 2 places: 1000 and 10,000. Lakh and 10 lakh are in lakh period. Crore and 10 crore in crores period. Now move on to the next topic, that is international place value chart. In international place value chart, there are 9 places and there are 3 periods. In ones period there are 3 places, that is ones, tens and 100. In 1000 period there are 3 places: 1000, 10,000 and 100,000. In millions period there is million, 10 million and 100 million places. इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर लैख एंड करोड़ था, बट यहाँ पर आपका मिलियंस आ जाता है, यहाँ लैख एंड करोड़ नहीं होते हैं. राइट नाउ the question that arises is how to put commas in Indian place value chart and international place value chart. In Indian place value chart, starting, I have taken a number also. Here is the number and we will start from the right से हम start करते हैं. एंड कॉमास जो लगते हैं वो स्टार्टिंग में पहले हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, देन आफ्टर 2 digits. First of all, we'll write down the places over each digit, that is 0 at 1's place, 1 is at 10's place, 8 at 100th, 7 at 1000, 6 at 10,000, then like this. Now, starting from the right, first of all, we'll count 3 digits, 1, 2, 3. यहाँ कॉमा प्लेस करा आपने. देन आफ्टर 2 digits, 1 and 2, यहाँ कॉमा आप करोगे प्लेस. देन 2 digits के बाद फिर आप कॉमा लगाओगे. तो कॉमास इसमें जो लगते हैं, जो हम कॉमास प्लेस करते हैं, वो हम पीरियड्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं. लाइक देयर इज़ वन पीरियड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में. फर्स्ट पीरियड जो होता है वो वंस का होता है, वो आफ्टर 3 प्लेस के बाद आता है, तो इसलिए यहाँ कॉमा लग जाता है. देन नेक्स्ट पीरियड इज़ 1000 प्लेस के अंडर 2 प्लेसेस आती हैं, 1000 एंड 10,000, तो आप 2 के बाद कॉमा लगा देते हो. देन लैख प्लेस में 2 प्लेसेस आर देयर, तो आप 10 लाख के बाद कॉमा लगा देते हो. तो इसीलिए यहाँ पर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले 3 के बाद कॉमा लगता है, जो कि वंस पीरियड होता है. देन जो सेकेंड पीरियड जो आपका होता है वो 1000 का होता है, तो 1000 में 2 प्लेसेस होती हैं, इसलिए आप 2 के बाद कॉमा लगाओगे, देन अगेन 2 के बाद. नाउ इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हम देखें ऊपर टेबल में, तो यहाँ पर कितने पीरियड्स हैं? 3 पीरियड्स आते हो, तो कॉमा भी आफ्टर ईच पीरियड लगेगा. लाइक फर्स्ट जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट्स के बाद लग जाएगा. देन जो सेकेंड पीरियड है उसके अंडर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 प्लेसेस आती हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000, तो आप 100,000 के बाद कॉमा लगाओगे. तो अब हम यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या है. तो एग्जाम्पल, आई हैव ऑल्सो टेकन अ नंबर हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुट द प्लेसेस.
over each digit. Now कॉमास मैंने अभी आपको बताया कि आप राइट से स्टार्ट करोगे एंड 3 के बाद कॉमा लगता है. सो वी विल काउंट इट एज 1 2 3, कॉमा प्लेस करा हमने, देन अगेन आफ्टर 3 डिजिट्स देन कॉमा. नाउ द नेक्स्ट question is how to read a number in Indian place value chart and according to international place value chart. अब रीड करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी नंबर गिवन है एंड यू हैव टू राइट इट इन वर्ड्स, देन आपको रीड करना आना चाहिए पहले. अगर आपको रीड करना नहीं आएगा तो आप फिर उसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आप वर्ड्स में उसे कैसे लिखोगे. इसलिए सबसे पहले जस्ट राइट. अब मैं इंडियन की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लेसेस लिख लोगे. इंडियन प्लेस वैल्यू में जो जो प्लेसेस होती हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़. अब उसके बाद आपकी जो नंबर हमें गिवन है, उस नंबर को जो भी जितने भी डिजिट्स यहाँ पर हैं वो सारी आप प्लेसेस के नीचे लिख दोगे. लाइक 0 at 1's place, 7 is at 10th, 5 is at 100th place, then 4 is at 1000 place, 3 at 10,000, 8 at lakh, and there is 0 at 10 lakh place and 5 is at crore place. Now we can easily read it as 5 is at crore place, so we will write it as 5 crores. 8 इज़ एट लैक प्लेस, 10 लाख प्लेस पर कुछ नहीं है, तो उसे हम रीड कैसे करेंगे. अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, सपोज़ अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता तो हम उसे 28 कंबाइंड फॉर्म में करते हैं हम. अगर लैख पीरियड है तो लैख की जितनी भी डिजिट्स होंगी आप उसे कंबाइंड रीड करोगे. लाइक आप इसे 28 रीड करोगे. लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 0 है, तो इसे अगर हम कंबाइंड फॉर्म में रीड करें तो इसे हम 8 बोलेंगे. 8 लाख, देन 1000. दिस इज़ अ 1000 पीरियड. 1000 पीरियड में 2 डिजिट्स हैं, एक 1000 की और एक 10,000 की. तो इसे आप कैसे रीड करोगे, 34,000, बिकॉज 34 जो है वो 1000 पीरियड में है. 1000 में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ अभी. एंड 5 इज़ एट 100 प्लेस, 5 100 70, 70. सो मैं अभी अगेन रीड कर रही हूँ इसे. 5 करोड़ 8 लाख 34,570. नाउ इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इसी नंबर को अगर यही नंबर हो और इसे मुझे इंटरनेशनल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, इंटरनेशनल फॉर्म में मुझे इसे वर्ड्स में लिखना है, तो इसमें भी मैं यही करूँगी. इसमें भी जो डिजिट्स मुझे गिवन है वो मैं प्रॉपर प्लेसेस के नीचे राइट डाउन कर दूँगी. 0 7 5 4 3 8 0 5. ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट. आपको 1 से स्टार्ट करना है, यहाँ से कोई स्टार्ट नहीं करेगा लिखना. आपको 1 से स्टार्ट करना है, राइट से आपको स्टार्ट करना होता है जहाँ तक भी आपके डिजिट्स जाती हैं. ना अब यहाँ अगर मैं इसे देखना चाहूँ, अगर मुझे इसे वर्ड्स में लिखना हो तो मैं रीड करूँगी. यहाँ मिलियन के 2 डिजिट्स हैं, मिलियन एंड 10 मिलियन, तो इसे कंबाइंड फॉर्म में मैं रीड करूँगी 50 मिलियन. 1000 के यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000, तो इसे भी हम कंबाइंड फॉर्म में ही रीड करेंगे. आप 8 100,000, 3 10,000, 4,000 इस तरह से नहीं लिखोगे. इसे आप कंबाइंड फॉर्म में ही रीड करोगे बिकॉज़ ये तीनों 1000 के हैं. 800 अगर हम इसे, अगर मैं साइड में अगर अलग से लिखूँ 834 को, जो कि 1000 के डिजिट्स हैं, तो आप इसे कैसे रीड करोगे, आप इसे रीड करोगे 834. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको यही लिखना है 834. अब 834 के आगे उसकी आप प्लेस लिखोगे कि उसकी जो पीरियड है वो उसका क्या है. अब यहाँ पर 834 1000 पीरियड में आते हैं. ये जो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स होते हैं ये 1 पीरियड में होते हैं. ये जो इसके बाद के जो 1000, 10,000 और 100,000 हैं, ये तीनों 1000 पीरियड में आते हैं. और ये दोनों जो है मिलियन एंड 10 मिलियन, ये आते हैं मिलियन पीरियड में. तो इसके बाद जब आप इसे लिख लोगे कंबाइंड फॉर्म में, इसके बाद इसका पीरियड लिखोगे कि 834 इज़ दैट 1000 पीरियड.
अब नेक्स्ट आते हैं हम 5 इज़ एट 100 प्लेस 570। So this is the way we can write the number in Indian place value chart and according to international place value chart. Now the next topic is place value and face value. Now place value is what? Place value depends on the place it occupies in the chart. जो आपका ये जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसमें जो भी आपसे डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है वो डिपेंड करती है कि जो डिजिट आपके जिस डिजिट के बारे में आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है, जो आपसे पूछा जा रहा है, उसकी प्लेस क्या है प्लेस वैल्यू चार्ट में। और फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू इज़ द डिजिट इटसेल्फ। इट मीन्स दैट जिस भी डिजिट का आपसे फेस वैल्यू पूछा जा रहा है वही डिजिट, उसमें आपको उसकी प्लेस को नहीं देखना है कि वो इंटरनेशनल सिस्टम में कहाँ पर आ रही है या इंडियन सिस्टम में वो किस पीरियड में आ रही है या किस प्लेस पर है। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द डिजिट। बट इन प्लेस वैल्यू इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द चार्ट। चार्ट में जिस प्लेस पर वो आ रही है वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, I have write down a number here is 31,24,698. In this number, if I ask you that tell me the place value and face value of 4, so how will you calculate it? You will calculate it a face value की अगर मैं बात करूँ तो face value मैंने अभी आपको बताया that it face value is the digit itself। तो 4 की मैंने आपसे face value पूछी तो आप 4 ही लिख दोगे क्योंकि वो digit जो होती है वही face value होती है। बट इन केस ऑफ प्लेस वैल्यू के लिए आप ये देखोगे कि 4 जो है वो 4 किस प्लेस पर है। इसके लिए जो भी नंबर आपको दिया हुआ होता है, जो भी नंबर यहाँ गिवन हो, आपको क्वेश्चन में दिया होता है, मेंशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द प्लेसेस ओवर ईच डिजिट एंड देन उसके बाद आप देखोगे कि वो जो आपसे पर्टिकुलर डिजिट जिसका क्वेश्चन करा जा रहा है उसकी प्लेस क्या है। अब मैंने यहाँ से आपसे पूछा है कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 इज़ एट 1000th प्लेस। एज यू कैन सी 4 के ऊपर जो प्लेस लिखी हुई है वो है 1000, तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 1000। तो इसलिए आप इसे लिखना कैसे होता है, अब इसका मेथड क्या होता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए यू हैव टू राइट डाउन द फेस वैल्यू, आप उस डिजिट को लिखोगे एंड देन आपको जो उस डिजिट की प्लेस होती है उससे आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हो। लाइक यहाँ 4 जो है वो 1000 प्लेस पर है, 1 10 100 1000, तो आप 4 की मल्टीप्लाई 1000 से कर दोगे, दैट इज़ 4000। तो 4 की प्लेस वैल्यू की बात अगर मैं पूछूँ आपसे कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4000। एंड फेस वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो फेस वैल्यू इज़ द नंबर, इट्स इज़ द डिजिट इटसेल्फ। तो आप जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसे एज इट इज़ ऐसे ही लिख दोगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ expanded form. As you can see, I have also note down a question here. Find the place value and face value of 3 in this number. So let's do it. This is the number: ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. I have written the places over each digit. Now place value. अब place value क्वेश्चन में दिया है, place value सारी डिजिट्स की नहीं निकालनी है, क्वेश्चन में गिवन है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन दैट नंबर। 3 ये है 3, तो 3 में आप सबसे पहले फेस वैल्यू में अगर बात करूँ तो फेस वैल्यू इज़ द डिजिट इटसेल्फ, सो फेस वैल्यू इज़ 3, उसे आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख सकते हो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लेस वैल्यू, देन प्लेस वैल्यू के लिए यू हैव टू राइट डाउन द फेस वैल्यू, आप उस डिजिट को लिखोगे। आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद इट्स प्लेस। इसकी प्लेस क्या है, 3 इज़ एट 10,000 प्लेस, तो आप इसकी मल्टीप्लाई भी 10,000 से कर दोगे एंड द फाइनल आंसर विल बी 30,000। सो 30,000 C3 जो है उसकी प्लेस वैल्यू है 30,000 एंड फेस वैल्यू इज़ 3। नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म इज़
आपने प्रीवियस क्लास में 4th क्लास में भी ये करे हैं। सो एक्सपेंडेड फॉर्म इज सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। जो भी आपकी नंबर आपको दिया हुआ है उसमें आपको अगर कहा जाए कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, आपको उस क्वेश्चन को उसमें आपको सारे डिजिट्स को एक्सपेंड करना है, तो आपको उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू का सम करना होता है। एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, मैंने यहाँ एक नंबर लिखा दैट इज़ 38,20,780। अब इस क्वेश्चन में मुझे आई हैव टू कैलकुलेट, आई हैव टू कन्वर्ट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। सबकी मैं जितनी भी डिजिट्स यहाँ पर हैं सबकी मैं प्लेस वैल्यू लिखूँगी। लाइक 2 इज़ एट वंस प्लेस। फर्स्ट आप लिख लो, यहाँ पर आप लिख सकते हो सबसे पहले प्लेसेस। अगर आप हर क्वेश्चन में अगर ऐसे प्लेसेस लिख लोगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, चाहे वो राइट इन वर्ड्स में हो, राइट इन फिगर्स हो, एक्सपेंडेड फॉर्म हो, प्लेस वैल्यू हो, फेस वैल्यू हो। अगर आप ये लिखोगे तो आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले जो भी आपको नंबर प्रोवाइड करा गया है उसमें आप सबसे पहले आप सारी प्लेसेस लिखिए। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। मैं यहाँ से हमेशा आपको राइट से स्टार्ट करना है, कहीं से स्टार्ट नहीं, यहाँ लेफ़्ट से आप स्टार्ट नहीं करोगे, हमेशा आपको राइट से स्टार्ट करना है। तो 2 की अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखूँगी, 2 इज़ एट वंस प्लेस, तो यहाँ आप 2 लिखोगे। यहाँ हैं तो भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 वंस प्लेस पर है तो आप 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ 2 लिख दिया। देन नेक्स्ट इज़ 8 की प्लेस वैल्यू 8 इज़ एट 10th प्लेस, और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 80। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करो तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, आप जिसकी प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है आप उस नंबर को लिखो, उसके बाद उसके आगे काउंट करो कितने डिजिट्स हैं। यहाँ 8 है, 8 के आगे 1 डिजिट है तो आप 10 लगा दोगे यहाँ पर। देन 7 की अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 7 लिखूँगी। 7 इज़ एट 100 प्लेस, तो 100 में 2 ज़ीरोज़ होती हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगा दी। या फिर आप 7 लिखने के बाद यहाँ पर काउंट करोगे कितने डिजिट्स हैं 7 के आगे, जिसकी हम प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं उसके आगे काउंट करनी है आपको कितने डिजिट्स हैं 1 एंड 2, तो आप 2 ज़ीरोज़ प्लेस कर दोगे। देन नेक्स्ट 0 का कुछ नहीं करना, 0 को आप 0 लिख दोगे, क्योंकि 0 के आगे अगर मैं यहाँ काउंट करूँ 1 2 3 तो 3 ज़ीरोज़ अगर मैं यहाँ लगा भी देती हूँ तब भी वो 0 ही रहना है, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये करने की। यू कैन जस्ट राइट इट एज 0, दैट्स इट। नाउ 2 की अगर मैं प्लेस वैल्यू देखूँ तो 2 लिखने के बाद 1 2 3 4 ज़ीरोज़ में यहाँ लगा दूँगी। सिमिलरली आप 8 को भी ऐसे ही करोगे एंड आप 3 को भी प्लेस वैल्यू ऐसे लिखोगे। अब जो आपके यहाँ पर जो आंसर्स आए हैं इन सबको आप एडिशन की फॉर्म में यहाँ पर इस तरह से आप लिख दोगे। लाइक 3 की जो प्लेस वैल्यू थी वो 30 लाख थी तो आपने 30 लाख लिखा, प्लस देन आप ये लिखोगे, देन 20,000, देन 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज़ 0 की कोई यहाँ वैल्यू अगर आप लिखते भी हो 0 तो कुछ अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एंड देन 700, देन 80 एंड लास्ट में आप 2। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आप लास्ट की जो डिजिट आपकी होगी आप वहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे एंड देन ऊपर इस तरह से नीचे से आप ऊपर जाओगे जब आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने क्या करा था, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको नंबर दिया था, नंबर को आपने एक्सपेंड करा। शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी होगी और आपको ये नंबर बनाना होगा। तो जस्ट बिल्कुल रिवर्स है ये। आपको जैसे एग्जांपल में मैंने ये नंबर लिया है, यहाँ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है एंड आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, लाइक आपको एक नंबर की फॉर्म में लिखना है इसे। तो इसके लिए भी 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड ये है कि आप पहले प्लेसेस लिख लो, जो भी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की प्लेसेस होती हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, डिपेंडिंग कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहाँ तक के नंबर दिए हैं। अभी जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे अगर मैं इसे रीड करूँ तो ये 30 लाख है, लाख तक हमें दिया हुआ है, 10 लाख तक दिया हुआ है, इसलिए मैंने 10 लाख तक लिख लिया। अगर यहाँ पर करोड़ तक दिया हुआ होता तो मैं आगे करोड़ भी ऐड कर देती। और सेकंड मेथड एक होता है जिसमें कि आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर सकते हो। वैसे सबसे पहले आपको यही ट्राई करना है। ये तब है कि अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है, आपको डाउट है कि मेरा गलत हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, इससे भी आंसर वही आता है।
तो पहले मैं इस मेथड की बात कर लेती हूँ आपसे। तो इस क्वेश्चन में पहले आपने प्लेसेस लिखी, देन अब आप जो जो यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं एक्सपेंड करके, जो नंबर्स आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में जो नंबर एक नंबर आपको दिया हुआ है उसे आप लिखोगे। अब ऐसे मैं रीड करूँगी पहले यहाँ फर्स्ट नंबर को 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 3 इज़ एट 10 लाख, तो आप 10 लाख प्लेस पर 3 लिख दोगे। देन इसे रीड करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख, 8 इज़ एट लाख प्लेस, तो आप लाख के नीचे 8 लिख दोगे। देन यहाँ हम आ जाएंगे 20,000, तो 20,000 है तो 20,000 मैं यहाँ तो लिख नहीं सकती हूँ, 20 दोनों डिजिट्स एक साथ नहीं आ सकती, 20 का मतलब दोनों 20,000, तो 1000 प्लेस के यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं, तो यहाँ मैं 20 इस तरह से लिखूँगी कि 1000 के नीचे ही मेरा 20 आ जाए, एक यहाँ लिखा जाएगा 10,000 में और एक यहाँ लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट 700 है, 7 इज़ एट 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे मैं 7 लिख दूँगी, ज़ीरो नहीं लगानी है आपको, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द डिजिट कि 7 जो है वो किस प्लेस पर है, आप सिर्फ डिजिट लिखोगे। देन यहाँ 80 है, 80 मीन्स 10th प्लेस एंड देन 2, यू विल राइट इट एज यहाँ इस तरह से। अब अगर मैं सेकंड इसकी बात करूँ, सेकंड मेथड की, तो जो भी आपको नंबर्स दिए हैं आप इसे लिखा आपने यहाँ, देन उसके बाद जो सेकंड नंबर दिया उसे उसके नीचे लिखा, देन थर्ड लिखा, देन फोर्थ लिखा, फिफ्थ एंड सिक्स, जो भी आपको यहाँ नंबर दिए हुए होंगे आप उसे इस फॉर्म में एडिशन के फॉर्म में लिख लोगे, पीछे से स्टार्ट करते हुए, राइट से आपको स्टार्ट करना है लिखना। एंड देन आप इसे ऐड कर लो। अगर मैं इसे ऐड करूँ, ज़ीरो में कुछ भी है, मैं अगर ऐड करूँगी यहाँ कोई भी नंबर हो तो नंबर वही आ जाना है। देन ज़ीरो में 8 ऐड करा तो 8 7 0 2 8 एंड 3। तो अब अगर आप देखो तो ये और ये दोनों के आंसर्स मैच कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो और ये भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये आप करोगे तो इसे रफ़ फॉर्म में आप करोगे, रफ़ में आप ये कैलकुलेट करके आप ये आंसर फिर यहाँ लिखोगे, एंड इसे आप प्रॉपर इस तरीके से ही करोगे। बट आपको चूज़ यही करना है, बट ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर आपको ये करने के बाद अगर आपको लगे कि आपको डाउट है कि ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि आपने ठीक करा है नहीं करा। आप ये चेक करने के लिए होता है ये मेथड, आप रफ़ में इसे करके देख सकते हो। आप इसे करो पहले, उसके बाद आप रफ़ में इसे करके देखो, जो आपका आंसर आ रहा है फिर दिस मैच इट, इसे मैच करिए। अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ गलत हुआ है, तो आप उसे इरेज करके आप उसे करेक्ट करो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। अब ये भी आपने प्रीवियस क्लास में करा हुआ होगा, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। नाउ सक्सेसर इज़ व्हाट? सक्सेसर इज़ वन मोर देन द गिवन नंबर, और वी कैन से इट एज अ नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। आपको जो भी नंबर दिया हुआ हो, कोई भी नंबर हो, उसके जस्ट आपने सीखा ही है, आप प्रीवियस फर्स्ट से सेकंड से करते चले आते हो ना, व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर, तो ये वही चीज़ होता है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है इनका। यहाँ सक्सेसर प्रेडिसेसर होता है, ये सक्सेसर मीन्स व्हाट कम्स आफ्टर एंड प्रेडिसेसर इज़ व्हाट कम्स बिफोर। प्रेडिसेसर इज़ वन लेस देन मीन्स आपको वन लेस करना होता है जो भी गिवन नंबर दिया हुआ होता है, और इसे दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो इट प्रेडिसेसर इज़ द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। आपको जो भी नंबर गिवन है उससे जस्ट पहले जो भी आता है, लाइक अगर मैं 10 बोलूँ कि 10 का प्रेडिसेसर क्या है, तो 10 से जस्ट बिफोर पहले आता है 9, तो 9 इज़ द प्रेडिसेसर। और अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे 10 के सक्सेसर की बात करूँ, तो 10 का सक्सेसर होगा 11, क्योंकि 10 के जस्ट आफ्टर 11 आता है। तो सक्सेसर इज़ वन मोर देन द गिवन नंबर। सक्सेसर में आपको 1 प्लस करना होता है एंड प्रेडिसेसर में आपको 1 माइनस करना होता है। और फॉर्मूला भी इसका मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दैट सक्सेसर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1। कोई भी नंबर हो, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, एनी नंबर, आपको उसमें 1 ऐड कर देना है। एंड इन प्रेडिसेसर यू कैन कैलकुलेट इट बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दैट नंबर। लाइक अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 2,92,328 और मुझे इसका सक्सेसर कैलकुलेट करना है, देन सिंपली मैं यहाँ 1 लिखूँगी एंड 1 इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो अगर मैं इसे ऐड करूँ, इस नंबर में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 8 and 1 9, एंड देन ये सेम सिमिलरली ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और यहाँ अगर मैं प्रेडिसेसर की बात करूँ तो प्रेडिसेसर में 1 माइनस करना होता है, तो 8 माइनस 1 इज़ 7, एंड ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाले हैं।
अच्छा, वन मोर थिंग, ये एक चीज़ और है कि जब आप ये कर लेते हो शॉर्ट फॉर्म में, आप जब करोगे तो उसके बाद आपको कॉमास भी लगाने होते हैं। एंड कॉमा लगाने का मेथड मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको अगर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो इंडियन सिस्टम में, अब यहाँ इंडियन सिस्टम में इंडियन की पहचान क्या होती है, इंडियन सिस्टम की अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन इंडियन में है या इंटरनेशनल फेस वैल्यू चार्ट में है, तो अगर कॉमास 3 के बाद और उसके बाद 2 के बाद कॉमास लगे हैं तो वो इंडियन सिस्टम है, और अगर कॉमास 3 डिजिट्स के बाद लगे हुए हैं तो वो इंटरनेशनल है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 3 के बाद कॉमा है एंड आफ्टर दैट 2 डिजिट्स के बाद कॉमा है, तो ये इंडियन सिस्टम है। तो इंडियन सिस्टम में कॉमास 3 राइट से स्टार्ट करते हैं, और राइट स्टार्ट करने के बाद पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं 3 डिजिट्स के बाद, देन 2 डिजिट्स के बाद। तो अगर मुझे यहाँ कॉमा लगाने हो तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, 1s 10s 100, यहाँ कॉमा लगेगा, देन 2 डिजिट्स के बाद यहाँ हम कॉमा लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही कॉमा लग जाएगा। क्लियर? Now, next topic is ascending order and descending order. You all are familiar with these terms, that ascending order is smallest to biggest. Ascending order means you have to arrange the numbers, the set of numbers in according to the from smallest to biggest. And in descending order, you arrange the numbers from biggest to smallest. बड़े से छोटे में आप अरेंज करोगे डिसेंडिंग में, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में यू विल अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे से बड़े में। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ये 4 नंबर्स हैं जहाँ लिखे हुए हैं, 4 नंबर्स आर देयर एंड यू हैव, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू अरेंज दीज सेट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, इन्हें रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विच वन इज़ स्मॉलर एंड विच वन इज़ बिगर। यहाँ अगर मैं रीड करूँ तो दिस इज़ 1 लाख, पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं, आप स्टार्टिंग के नंबर को देखो सिर्फ पहले स्टार्टिंग में। हियर इज़ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख। अब हमें पता है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है तो स्मॉल आएगा पहले। अब स्मॉल 1 लाख है एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 लाख, ये तो बाद में आएंगे, ये तो स्मॉल है नहीं। सबसे छोटे की बात करें तो 1 लाख वाले स्मॉल होते हैं। तो अब इसमें भी जब फर्स्ट आपका जो डिजिट है अगर वो सेम होती है, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट पीरियड में आप आइए, यहाँ पर नेक्स्ट जो पीरियड है वो 1000 का है, एंड 1000 में यहाँ 23,000 है और यहाँ पर 32। तो विच वन इज़, अगर दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो विच वन इज़ स्मॉलर, 1,23,000। तो फर्स्ट आप इसे लिख दोगे 1,23,456। देन आप इस टर्म को लिखोगे 1,32,456। देन अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट विच वन इज़ स्मॉलर, 2 एंड हियर इज़ 3। तो ऑब्वियसली 2 लाख इज़ स्मॉलर एंड 3 लाख इज़ बिगर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 2,31,456 एंड उसके बाद में लिख देंगे 3,21,456। अगर इसे अब हम अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग मीन्स वी हैव टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो बिगेस्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिस वन इज़ द बिगेस्ट, आफ्टर दैट दिस वन, आफ्टर दैट दिस एंड फिर ये आ जाएगा लास्ट में। तो इसे मैं ऐसे ही लिख दूँगी 3,21,456। देन अच्छा एक चीज़ और, जब आप क्वेश्चंस को करते हो तो जो आप नंबर लिख चुके होते हो आप उसे वहाँ टिक कर लिया करो, सो दैट कि वो नंबर हो चुका है। अब जो आपको कंपैरिजन करना है वो जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स जो बच गए हैं उनमें आपको कंपेयर करना है। लाइक ये नंबर मैं लिख चुकी हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब मुझे नेक्स्ट जो बचे हैं उनमें देखना है कि बिगेस्ट क्या है। डिसेंडिंग में ध्यान रखना है, आपको बिगेस्ट पे फोकस करना है कि आपको बिगेस्ट देखना है। एंड असेंडिंग में आप क्या करना है, असेंडिंग में आपको स्मॉलेस्ट देखना है कि स्मॉलेस्ट क्या है। तो अभी डिसेंडिंग में मैंने ये लिख लिया, I have written down 3,21,456। तो अब 3 नंबर्स आर लेफ्ट। अब इनमें मैं देखूँगी कि बिगेस्ट नंबर क्या है। अब तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो बिगेस्ट तीनों में से, इन तीनों में से ये वाला है। तो अब मैं इसे लिख दूँगी और यहाँ मैंने टिक भी कर दिया 2,31,456। नाउ अब 2 टर्म बची हुई हैं, 2 टर्म्स आर लेफ्ट। अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। अगर मैं इसे रीड करूँ तो 1,23,456 और इसे अगर रीड करूँगी तो 1,32,456। नाउ विच वन इज़ बिगर, डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें बिगर देखना है, तो बिगर इज़ दिस वन इज़ बिगर, सो आई विल राइट इट हियर। एंड लास्ट में हम जो हमारा बच गया है नंबर
दिस वन, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द 4 नंबर्स। सो इसे अब हम लिख देंगे लास्ट में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने होंगे। ये क्वेश्चन जो भी मैंने अब तक टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं, ये सारे वर्कशीट्स जो आपको पहले प्रोवाइड करी गई हैं, 3 वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं, तीनों में इस तरीके के क्वेश्चन ही थे। कुछ अलग से मैंने टॉपिक ऐसा डिस्कस नहीं करा, वही टॉपिक्स ये मैंने डिस्कस करे हैं जो आपको वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए गए थे। तो जो अब टॉपिक है हमारा, अब हमें कुछ सेट ऑफ डिजिट्स दी होंगी, कुछ डिजिट्स हमें प्रोवाइड करी जाएंगी क्वेश्चन में, एंड उन डिजिट से हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा। अब ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म होता है और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म होता है? फॉर ग्रेटेस्ट नंबर वी हैव टू अरेंज द डिजिट्स, जो भी आपको सेट ऑफ डिजिट्स दी हैं उन डिजिट्स को आप अरेंज करते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यू हैव टू अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं अब इसकी बात करूँ, 4 7 6 8 1 5 ये 6 डिजिट्स हैं, एंड मुझे अब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो स्मॉलेस्ट मीन्स आई हैव टू अरेंज दीज डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर इज अरेंजिंग द नंबर और अरेंजिंग द डिजिट्स फ्रॉम smallest to biggest. So smallest digit here is 1, so I will write 1. Then the smallest digit is 4, after that 5, then 6, then 7 and then 8. आप इसके बाद अब कॉमास करने होते हैं, कॉमा लगेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। पहले आप 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाओगे एंड देन 2 डिजिट्स के बाद। सिमिलरली ऐसे ही ग्रेटेस्ट बनाना है, एंड इन टू फॉर्म ग्रेटेस्ट नंबर we have to arrange the digits in descending order. Descending means from biggest to smallest. So biggest number यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 8 है, after that 7, then 6, then 5, then 4, then 1, and फिर comma place करेंगे after 3 digits and then 2 digits के बाद। So this is the method, this is the way by which you can form the greatest and the smallest number. तो ये टॉपिक्स जो मैंने आज आपसे डिस्कस करे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डिस्कस करा था कि